महामंत्र और श्री गणेश मंत्र। श्री गणेश मंत्र। कुछ समय के लिए हम ध्यान में रहेंगे।
Rahuri has a special significance in the history of the goddess. That when a horrible Rakshasa called Rahu started ruling this area and devastating the hopes of all the God-fearing people, then the goddess took her incarnation here. And she killed this man, this Rakshasa. And there are different places where how he ran and how she got him and ultimately killed. He was killed in Rahu. And that's why Rahu, Re starts from the Reem. As you know that Aim, Kleem, Reem are the three words denoting the three powers of the goddess. Aim, Reem and Kleem. Aim is the Mahakali. Reem is the Mahalakshmi. The Kleem is the Mahasaraswati. So with the Reem power, she killed this Rahu. And then after that killing, Bhaktas started living here. And a king came all the way from Rajputana and started worshipping the goddess. And when he was a poor man, he came here as a poor man. While worshipping the goddess, he raised this again into another kingdom. And that's why they are called as Shalivahanas, because they carried the shawl of the goddess. These Shalivahanas, later on in the dynasty, was a Babruvahan who fought Vikramaditya and defeated him, who was from Ujjain. Surprisingly, many of my relations are still in Ujjain and they are following Hindu religion. So, because he fought him and he captured him, many people from here shifted there and settled down in Ujjain. Now, this Rauri developed gradually into a very modern city, or you can say a modernized. And when we go to Nandgaon Shingwe, you will be able to see the forefathers of mine were called as Shalivahanas, and my mother's place Zadhavas, where they resided and lived. So Rahuri has a special significance in the life of Sahajoga, or I should say in my own life. And that is why, surprisingly, that in Rahuri we have established our center in the biggest way. Because the kings here worshipped the mother with the Shah. Now this has a special meaning as the significance goes, or you can say the symbolic. It covers the modesty of the mother. Mother protects us, she looks after us. So this is the one which covers her, gives her the grace, gives her the protection from the cold. And when the children are suffering or are tired or sick, she covers them with the shawl. So the shawl has a very big meaning. And because they used to carry the shawl of the mother all the time in their hands, that's why they were called as Shalivahanas. So the significance of Rahuri is very great. And you will also see that the groves also, the people here are very receptive to Sahajoga. Even the factory people, I went to see them before I came here to talk to them. And they are so much submerged
in the developments of Sahaja Yoga and the amount of things they want to do and want to take advantage of Sahaja Yoga here. This they have made for you, specialty was made with great care. Apart from that, they saw to it that it was finished and worked very hard day and night just to prepare this fall for. So this is how it is going to work out. And last time I told them that you should not make an alcohol out of this molasses and sell it in the market at a cheap rate, but make something useful. So they are trying to find out a technique about which I talk to them now. So they are very religious people also. And they are trying to improve the lot of the people by removing all these addictions among the people. So that is the significance of Rahuri Puja. And that's what it is, that you are like Shalivanas who are worshipping the mother and her shop. So today's puja has a special significance. That's why Rahuri, we have very good Sahaja Yogis here, very developed, very involved, knowledgeable people. They are not scholars of Sanskrit, but they are scholars of Sahaja Yoga. There is a difference between being a scholar of Sanskrit and a scholar of Sahaja Yoga. Now for you people, I hope it has been a comfortable stay for you here, and we hope also for the future you all are going to enjoy your journey and enjoy the bliss of the divine. राहुरीबद्दल यांना मी सांगत होते की राहुरीचं काय महात्म्य आहे. राहुरीमध्ये शालिवानांचं राज्य राहिलं. आधी काळामध्ये ते एक राहू म्हणून राक्षस होता, फार दुष्ट, आणि तो लोकांना छळत असे. आणि त्याचं उच्चाटन करण्यासाठी देवीने अवतार घेतला आणि तिने त्या राहूला ह्या राहुरीमध्ये मारलं. री शब्दाचा अर्थ होतो री म्हणजे महालक्ष्मी स्वरूप, महालक्ष्मी स्वरूपाने मारलं. म्हणून आपण असं देवी महात्म्यात हे वाचत नाही, कारण देवीमध्ये फक्त महाकालीचं वर्णन. वी डोंट रीड अबाउट राहू's killing because it is Mahalakshmi who killed. What we read in the Devi Mahatmya is the Mahakali's powers. But Rahu was killed here in Rahuri by Mahalakshmi, and that Mahalakshmi power is called as rain power. So that's why this is Rahuri. Actually it is Rahuri, but we can say this is Rahuri to make it simple. राहुला मुसळवाडीमध्ये मुसळाने मारलं तरी तो पळत होता. नंतर ओरडला म्हणून त्याला आरडगाव म्हणतात. मग तो इथे येऊन धाराशायी झाला, मेला इथे, म्हणून राहुरीचं महात्म्य आहे. पण त्याचं किती लांब लचक आहे ते बघितलं पाहिजे. आज इतक्या वर्षानंतर, हजारो वर्षानंतर शालिवाहनांचे बबरूवाहन राज्य करत असताना त्यांनी विक्रमादित्याला हरवलं. आणि विक्रमादित्य हा उज्जैनचा राजा होता आणि त्याचं स्वतःचं पंचांग होतं, कॅलेंडर होतं. त्यांनी आपले कॅलेंडर सुरू केलं, त्याचं नाव शालिवाहन शक त्याने सुरू केलं. आणि त्या शालिवाहन शकाप्रमाणे 1988 की काहीतरी वर्ष झालेले आहे. And according to that calendar only, all the Maharashtrians are living, which is very, I should say, much more subtler than the Vikram, this thing. Because in the Vikram Panchanga, this area is still called as Kali Yuga. But in this Panchanga, Shalivahan Panchanga, it is called as Krita Yuga. It's much subtler. That's a very wider thing, and it doesn't give you the different sections of Kali Yuga, that how it becomes Krita Yuga and ultimately a Satya Yuga. The calendar that was used by the North Indians was the Vikram, and the South Indians used the Shalivahan, but especially Maharashtra. But the support came mainly from Bal Gangadhar Tilak, who said that this is the better Panchanga because it deals with subtler side of time, and that's why this was regarded as a greater thing. Now on the first day,
of this calendar, they put a kalasha with a shawl as a band, a kalash and a shawl as a band. That's why kalash, which is the kundali, is the Aquarius. तर ह्याला मी असं सांगत होते की शालिवाहनाचं जे कॅलेंडर होतं ते त्यांनी सुरू केल्यानंतर त्याच्यानंतर मग त्यांनी इथे जे राज्य स्थापन केलं आणि त्याच्यात राहिले ते गुढीपाडवाचं तुम्हाला माहिती आहे म्हणून मी तुम्हाला इंग्लिशमध्ये सांगितलं नाही, ह्यानासारखं इंग्लिशमध्ये मी सांगितलं की आपल्याकडे गुढीपाडवा म्हणजे ती शॉल, जी शॉल ते वाहत असत म्हणून त्याला शालिवाहन देवीची शॉल. आणि ह्या देवीच्या शॉलमध्ये काय असतं ते तुम्हाला माहिती आहे की या शालीने तिला सौंदर्य येतं, शोभा तिची, आणि त्याशिवाय ती त्याने आपल्या अंगाचं रक्षण करते, म्हणजे थंडी वाऱ्यापासून रक्षण, तिच्या लज्जेचं रक्षण, आणि इतर काही घाण वगैरे लागायची असली तरी त्यापासून रक्षण होतं. म्हणजे ती जी आपल्याचं रक्षण करते, ती जी आपलं प्रोटेक्शन करते, तिचं एक सिम्बॉलिक म्हणा किंवा द्योतक स्वरूप आपण तिला एक शॉल, म्हणजे तू आमचं केलंस तर आम्ही तुला ही शॉल देतो, ही त्याचं द्योतक आहे. आणि नंतर ती मुलं झोपली किंवा ते त्रासात असले, आजारी असले की आपली शॉल त्यांच्यावर पांघरते. म्हणून ह्या शालीचं फार महात्म्य आहे. आणि पूर्वी आपल्याला माहिती आहे की आपल्या महाराष्ट्रात सर्व बायका कोणी असल्यात अंगावर नेहमी शॉल घेते. आता आपण मॉडर्न झालो म्हणून शॉल घेऊन फिरत नाही. इन द ओल्डन डेज all the Maharashtrian women used to have some sort of a additional cloth, a shawl, which they used to carry. If it was a marriage, then they used to have a marriage sari, on top of that was a shawl. All the time they had to wear something, a covering over the sari. Sari was not the end cloth, but now we have become modern, so we don't use another cloth which everyone has to use. So, but this is only the custom. And India is not the point. It's not only in Maharashtra, everywhere. But there, because the dress was not a sari, but those who wore the sari did not use in the north. But here, those who use the sari also used a shawl on top of that. And that's why, you see, this country has a speciality, this part, that they always had this shawl, whether they went out or they for a protection, or they went for a marriage or anything, they used to have another thing on top. Now, of course, we have symbolically something modernized. You see, very little pieces to be used as shawls. You see, everything getting modernized. अब हम हवन के लिए श्री माता जी से अनुमति लेंगे. हम आह्वान करेंगे. श्री माता जी, आज 3 फरवरी 2024 आपके चरण कमलों से पावन हुए निर्मल धाम आश्रम आरड़गांव राहुरी की पवित्र भूमि पर श्री एकादश रुद्र पूजा और सहयोग सेमिनार 2024 के सुचारू रूप से संपन्न होने हेतु हवन करना चाहते हैं. कृपया इस हवन की हमें अनुमति दीजिए और हमें आपकी दैवीय शक्ति, सभी गुण और चैतन्य से आशीर्वादित कीजिए. जय श्री माता जी. श्री गणेश अथर्व शीर्ष. नमस्ते गणपते त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं
चोद्वातात् अवान्धरातात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात् त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वं आनन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं तत्त्वो जायते सर्वं जगदिदं तत्त्वतिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयि लयमेष्यति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो निलो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वम् इन्द्रस्त्वम् अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्मभूर्भुवस्वरो गणानि पूर्वमुच्चार्य वर्णादि तदनन्तरम् अनुस्वारः परतरः अर्धेन्दुलसितं तारेण ऋद्धम् एकत्वमनुस्वरूपं गकारः पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वारः शान्तरूपम् बिन्दुरुत्तररूपं नादः सन्धानं सहिता सन्धिः सैषा गणेशविद्या गणकऋषिः निःसृत्गायत्री छन्दः गणपतिर्देवता ॐ गं गणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणं रदं च वरदं हस्ते बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरशूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृतेः पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्ते अस्तु लम्बोदराय एकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय
श्रीवरदमूर्तये नमो नमः। साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। अब हम हवन कुंड का पूजन करेंगे। इस दौरान हम कुछ मंत्रों का पठन करेंगे। श्री हवन देवता। त्वमेव साक्षात् श्री हवन देवता नमो नमः। श्री स्वाहा देवता। त्वमेव साक्षात् श्री स्वाहा देवता नमो नमः। श्री स्वधा देवता। त्वमेव साक्षात् श्री स्वधा देवता नमो नमः। श्री अग्नि देवता। त्वमेव साक्षात् श्री अग्निदेवता नमो नमः। श्री पंच महाभूत देवता। त्वमेव साक्षात् श्री पंचमहाभूतदेवता नमो नमः। श्री नवग्रह देवता। त्वमेव साक्षात् श्री नवग्रहदेवता नमो नमः। श्री अष्टदिक्पाल देवता। त्वमेव साक्षात् श्री अष्टदिक्पालदेवता नमो नमः। श्री वास्तु देवता। त्वमेव साक्षात् श्री वास्तुदेवता नमो नमः। साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। श्री अग्नि देवता साक्षात। त्वमेव साक्षात् श्री अग्निदेवता साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। अब हम श्री माता जी की 108 नाम लेंगे। हर मंत्र हम शॉर्ट फॉर्म में लेंगे और मंत्र के बाद ओम स्वाहा बोलेंगे। आप आपके राइट हैंड को अपने सर पे 3 बार गोल घुमा के हवन कुंड में हवि अर्पित करेंगे। श्री माता जी। त्वमेव साक्षात् श्री माताजी नमो नमः। ॐ स्वाहा। श्री महाराज्ञी। त्वमेव साक्षात् श्री महाराज्ञी नमो नमः। ॐ स्वाहा। श्री देव कार्य समुद्यता। त्वमेव साक्षात् श्री देवकार्यसमुद्यता नमो नमः। ॐ स्वाहा। श्री अकुला। त्वमेव साक्षात् श्री अकुला नमो नमः। ॐ स्वाहा। श्री विष्णु ग्रंथि विभेदिनी। त्वमेव साक्षात्
श्री विष्णुग्रन्थिविभेदिनी नमो नमः। ॐ स्वाहा। श्री निराकारा ॐ त्वमेव साक्षात् श्री निराकारा नमो नमः। ॐ स्वाहा। श्री भवानी ॐ त्वमेव साक्षात् श्री भवानी नमो नमः। ॐ स्वाहा। श्री भक्ति प्रिया ॐ त्वमेव साक्षात् श्री भक्तिप्रिया नमो नमः। ॐ स्वाहा। श्री भक्ति गम्या ॐ त्वमेव साक्षात् श्री भक्तिगम्या नमो नमः। ॐ स्वाहा। श्री शर्मदायिनी ॐ त्वमेव साक्षात् श्री शर्मदायिनी नमो नमः। ॐ स्वाहा। श्री निराधारा ॐ त्वमेव साक्षात् श्री निराधारा नमो नमः। ॐ स्वाहा। श्री सांद्र करुणा ॐ त्वमेव साक्षात् श्री सांद्रकरुणा नमो नमः। ॐ स्वाहा। श्री निरंजना ॐ त्वमेव साक्षात् श्री निरञ्जना नमो नमः। ॐ स्वाहा। श्री निर्लेपा ॐ त्वमेव साक्षात् श्री निर्लेपा नमो नमः। ॐ स्वाहा। श्री निर्मला ॐ त्वमेव साक्षात् श्री निर्मला नमो नमः। ॐ स्वाहा। श्री निष्कलंका ॐ त्वमेव साक्षात् श्री निष्कलङ्का नमो नमः। ॐ स्वाहा। श्री नित्या ॐ त्वमेव साक्षात् श्री नित्या नमो नमः। ॐ स्वाहा। श्री पाशहंत्री ॐ त्वमेव साक्षात् श्री पाशहन्त्री नमो नमः। ॐ स्वाहा। श्री निराकुला ॐ त्वमेव साक्षात् श्री निराकुला नमो नमः। ॐ स्वाहा। श्री निर्गुणा ॐ त्वमेव साक्षात् श्री निर्गुणा नमो नमः। ॐ स्वाहा। श्री निष्कला ॐ त्वमेव साक्षात् श्री निष्कला नमो नमः। ॐ स्वाहा। श्री निष्कामा ॐ त्वमेव साक्षात् श्री निष्कामा नमो नमः। ॐ स्वाहा। श्री निरुपप्लवा ॐ त्वमेव साक्षात् श्री निरुपप्लवा नमो नमः। ॐ स्वाहा। श्री नित्यमुक्ता ॐ त्वमेव साक्षात् श्री नित्यमुक्ता नमो नमः। ॐ स्वाहा। श्री निर्विकारा ॐ त्वमेव साक्षात् श्री निर्विकारा नमो नमः। ॐ स्वाहा। श्री निराश्रया ॐ त्वमेव साक्षात् श्री निराश्रया नमो नमः। ॐ स्वाहा। श्री निरंतरा ॐ त्वमेव
श्रीनिरन्तरा नमो नमः ॐ स्वाहा श्री निष्कारणा ॐ त्वमेव साक्षात् श्रीनिष्कारणा नमो नमः ॐ स्वाहा श्री निरूपाधि ॐ त्वमेव साक्षात् श्रीनिरूपाधिः नमो नमः ॐ स्वाहा श्री निरीश्वरा ॐ त्वमेव साक्षात् श्रीनिरीश्वरा नमो नमः ॐ स्वाहा श्री निरागा ॐ त्वमेव साक्षात् श्रीनिरागा नमो नमः ॐ स्वाहा श्री निर्मदा ॐ त्वमेव साक्षात् श्रीनिर्मदा नमो नमः ॐ स्वाहा श्री निश्चिंता ॐ त्वमेव साक्षात् श्रीनिश्चिन्ता नमो नमः ॐ स्वाहा श्री निरहंकारा ॐ त्वमेव साक्षात् श्रीनिरहङ्कारा नमो नमः ॐ स्वाहा श्री निर्मोहा त्वमेव साक्षात् श्रीनिर्मोहा नमो नमः ॐ स्वाहा श्री निर्ममा ॐ त्वमेव साक्षात् श्रीनिर्ममा नमो नमः ॐ स्वाहा श्री निष्पापा ॐ त्वमेव साक्षात् श्रीनिष्पापा नमो नमः ॐ स्वाहा श्री निसंशया ॐ त्वमेव साक्षात् श्रीनिसंशया नमो नमः ॐ स्वाहा श्री निर्भवा ॐ त्वमेव साक्षात् श्रीनिर्भवा नमो नमः ॐ स्वाहा श्री निर्विकल्पा ॐ त्वमेव साक्षात् श्रीनिर्विकल्पा नमो नमः ॐ स्वाहा श्री निराबाधा ॐ त्वमेव साक्षात् श्रीनिराबाधा नमो नमः ॐ स्वाहा श्री निर्नाशा ॐ त्वमेव साक्षात् श्रीनिर्नाशा नमो नमः ॐ स्वाहा श्री निष्क्रिया ॐ त्वमेव साक्षात् श्रीनिष्क्रिया नमो नमः ॐ स्वाहा श्री निष्परिग्रहा ॐ त्वमेव साक्षात् श्रीनिष्परिग्रहा नमो नमः ॐ स्वाहा श्री निस्तुला ॐ त्वमेव साक्षात् श्रीनिस्तुला नमो नमः ॐ स्वाहा श्री नीलचकुरा ॐ त्वमेव साक्षात् श्रीनीलचिकुरा नमो नमः ॐ स्वाहा श्री निरपाया ॐ त्वमेव साक्षात् श्रीनिरपाया नमो नमः ॐ स्वाहा श्री निरत्तया ॐ त्वमेव साक्षात् श्रीनिरत्यया नमो नमः ॐ स्वाहा
सुखप्रदा ॐ त्वमेव साक्षात् श्री सुखप्रदा नमो नमः ॐ स्वाहा श्री महादेवी त्वमेव साक्षात् श्री महादेवी नमो नमः ॐ स्वाहा श्री महापूज्या ॐ त्वमेव साक्षात् श्री महापूज्या नमो नमः ॐ स्वाहा श्री महापातकनाशिनी ॐ त्वमेव साक्षात् श्री महापातकनाशिनी नमो नमः ॐ स्वाहा श्री महाशक्ति ॐ त्वमेव साक्षात् श्री महाशक्ति नमो नमः ॐ स्वाहा श्री महामाया ॐ त्वमेव साक्षात् श्री महामाया नमो नमः ॐ स्वाहा श्री महारथी ॐ त्वमेव साक्षात् श्री महारथिः नमो नमः ॐ स्वाहा श्री विश्वरूपा ॐ त्वमेव साक्षात् श्री विश्वरूपा नमो नमः ॐ स्वाहा श्री पद्मासना ॐ त्वमेव साक्षात् श्री पद्मासना नमो नमः ॐ स्वाहा श्री भगवती ॐ त्वमेव साक्षात् श्री भगवती नमो नमः ॐ स्वाहा श्री रक्षाकरी ॐ त्वमेव साक्षात् श्री रक्षाकरी नमो नमः ॐ स्वाहा राक्षसग्नि ॐ त्वमेव साक्षात् राक्षसग्नि नमो नमः ॐ स्वाहा श्री परमेश्वरी ॐ त्वमेव साक्षात् श्री परमेश्वरी नमो नमः ॐ स्वाहा श्री नित्य यौवना ॐ त्वमेव साक्षात् श्री नित्ययौवना नमो नमः ॐ स्वाहा श्री पुण्यलभ्या ॐ त्वमेव साक्षात् श्री पुण्यलभ्या नमो नमः ॐ स्वाहा श्री अचिंत्य रूपा ॐ त्वमेव साक्षात् श्री अचिन्त्यरूपा नमो नमः ॐ स्वाहा श्री पराशक्ति ॐ त्वमेव साक्षात् श्री पराशक्तिः नमो नमः ॐ स्वाहा श्री गुरुमूर्ति ॐ त्वमेव साक्षात् श्री गुरुमूर्तिः नमो नमः ॐ स्वाहा श्री आदिशक्ति ॐ त्वमेव साक्षात् श्री आदिशक्तिः नमो नमः ॐ स्वाहा श्री योगदा ॐ त्वमेव साक्षात् श्री योगदा नमो नमः ॐ स्वाहा श्री एकाकिनी ॐ त्वमेव साक्षात् श्री एकाकिनी नमो नमः ॐ स्वाहा श्री सुखाराध्या ॐ त्वमेव साक्षात् श्री सुखाराध्या नमो नमः ॐ स्वाहा श्री शोभना सुलभागती
ॐ त्वमेव साक्षात् श्रीशोभनासुलभागती नमो नमः। ॐ स्वाहा। श्री सच्चिदानंद रूपिणी ॐ त्वमेव साक्षात् श्री सच्चिदानन्दरूपिणी नमो नमः। ॐ स्वाहा। श्री लज्जा ॐ त्वमेव साक्षात् श्रीलज्जा नमो नमः। ॐ स्वाहा। श्री शुभकरी ॐ त्वमेव साक्षात् श्रीशुभकरी नमो नमः। ॐ स्वाहा। श्री चंडिका ॐ त्वमेव साक्षात् श्रीचण्डिका नमो नमः। ॐ स्वाहा। श्री त्रिगुणात्मिका ॐ त्वमेव साक्षात् श्रीत्रिगुणात्मिका नमो नमः। ॐ स्वाहा। श्री महती ॐ त्वमेव साक्षात् श्रीमहती नमो नमः। ॐ स्वाहा। श्री प्राणरूपिणी ॐ त्वमेव साक्षात् श्रीप्राणरूपिणी नमो नमः। ॐ स्वाहा। श्री परमाणु ॐ त्वमेव साक्षात् श्रीपरमाणु नमो नमः। ॐ स्वाहा। श्री वीरमाता ॐ त्वमेव साक्षात् श्रीवीरमाता नमो नमः। ॐ स्वाहा। श्री गंभीरा ॐ त्वमेव साक्षात् श्रीगम्भीरा नमो नमः। ॐ स्वाहा। श्री गर्विता ॐ त्वमेव साक्षात् श्रीगर्विता नमो नमः। ॐ स्वाहा। श्री क्षिप्र प्रसादिनी ॐ त्वमेव साक्षात् श्रीक्षिप्रप्रसादिनी नमो नमः। ॐ स्वाहा। श्री सुधा श्रुति ॐ त्वमेव साक्षात् श्रीसुधास्तुति नमो नमः। ॐ स्वाहा। श्री धर्माधारा ॐ त्वमेव साक्षात् श्रीधर्माधारा नमो नमः। ॐ स्वाहा। श्री विश्वग्रासा ॐ त्वमेव साक्षात् श्रीविश्वग्रासा नमो नमः। ॐ स्वाहा। श्री स्वस्था ॐ त्वमेव साक्षात् श्रीस्वस्था नमो नमः। ॐ स्वाहा। श्री स्वभाव मधुरा ॐ त्वमेव साक्षात् श्रीस्वभावमधुरा नमो नमः। ॐ स्वाहा। श्री धीर समर्चिता ॐ त्वमेव साक्षात् श्रीधीरसमर्चिता नमो नमः। ॐ स्वाहा। श्री परमोदारा ॐ त्वमेव साक्षात् श्रीपरमोदारा नमो नमः। ॐ स्वाहा। श्री शाश्वती ॐ त्वमेव साक्षात् श्रीशाश्वती नमो नमः। ॐ स्वाहा। श्री लोकातीता ॐ त्वमेव साक्षात् श्रीलोकातीता नमो नमः। ॐ स्वाहा। श्री क्षमात्मिका ॐ त्वमेव साक्षात् श्रीक्षमात्मिका नमो नमः। ॐ स्वाहा। श्री लीला विनोदिनी
ॐ त्वमेव साक्षात् श्रीलीलाविनोदिनी नमो नमः ॐ स्वाहा श्री सदाशिव ॐ त्वमेव साक्षात् श्री सदाशिव नमो नमः ॐ स्वाहा श्री पुष्टिः ॐ त्वमेव साक्षात् श्री पुष्टिः नमो नमः ॐ स्वाहा श्री चंद्रनिभा ॐ त्वमेव साक्षात् श्री चन्द्रनिभा नमो नमः ॐ स्वाहा श्री रवि प्रख्या ॐ त्वमेव साक्षात् श्री रविप्रख्या नमो नमः ॐ स्वाहा श्री पावनाकृति ॐ त्वमेव साक्षात् श्री पावनाकृतिः नमो नमः ॐ स्वाहा श्री विश्वगर्भा ॐ त्वमेव साक्षात् श्री विश्वगर्भा नमो नमः ॐ स्वाहा श्री चित्तशक्ति ॐ त्वमेव साक्षात् श्री चित्तशक्ति नमो नमः ॐ स्वाहा श्री विश्वसाक्षिणी ॐ त्वमेव साक्षात् श्री विश्वसाक्षिणी नमो नमः ॐ स्वाहा श्री विमला ॐ त्वमेव साक्षात् श्री विमला नमो नमः ॐ स्वाहा श्री विलासिनी ॐ त्वमेव साक्षात् श्री विलासिनी नमो नमः ॐ स्वाहा श्री वरदा ॐ त्वमेव साक्षात् श्री वरदा नमो नमः ॐ स्वाहा श्री विजया ॐ त्वमेव साक्षात् श्री विजया नमो नमः ॐ स्वाहा श्री वंदारुजन वत्सला ॐ त्वमेव साक्षात् श्री वन्दारुजनवत्सला नमो नमः ॐ स्वाहा श्री सहजयोगदायिनी ॐ त्वमेव साक्षात् श्री सहजयोगदायिनी नमो नमः ॐ स्वाहा श्री विश्व निर्मला धर्मदायिनी ॐ त्वमेव साक्षात् श्री विश्वनिर्मला धर्मदायिनी नमो नमः ॐ स्वाहा साक्षात् साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः
अब हम हवन कुंड में नेगेटिविटी डालेंगे। हम जब बाधाएं डालेंगे हम सिर्फ स्वाहा बोलेंगे। सभी सहयोगियों के आध्यात्मिक उत्थान में आने वाली सभी बाधाएं स्वाहा। सहयोग के प्रचार प्रसार में आने वाली सभी बाधाएं, सहयोग में फॉल्सहुड, सभी प्रकार की भ्रांति, सहयोग में कर्मकांड स्वाहा। सहयोग में स्वयं घोषित अगुरु स्वाहा। सभी युवा शक्ति और उनके करियर में आने वाली सभी बाधाएं, सहज विवाह की सभी बाधाएं, द लाइफ इटर्नल ट्रस्ट के प्रोजेक्ट्स और कार्य में आने वाली सभी बाधाएं, निर्मल धाम आश्रम आरडगांव के कार्य में आने वाली सभी बाधाएं, इंटरनेशनल सहयोगा रिसर्च और हेल्थ सेंटर सीबीडी बेलापुर के कार्य में आने वाली सभी बाधाएं, युद्ध परमाणु और बायोलॉजिकल शस्त्र, सभी प्रकार का आतंकवाद, रंगभेद और जातीयवाद, झूठी पत्रकारिता, स्त्रियों और बच्चों का शोषण, फिल्म, सोशल मीडिया और इंटरनेट से आने वाली सभी बाधाएं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट के सभी दुष्परिणाम, सभी प्रकार का प्रदूषण, सभी प्रकार का भ्रष्टाचार, विश्व की सभी आध्यात्मिक समस्याएं, कुगुरु और अगुरु, धार्मिक कट्टरतावाद, ड्रग्स और ड्रग्स माफिया, अल्कोहल और तंबाकू, सभी प्रकार के वायरसेस, भारत की सभी आर्थिक और सामाजिक समस्याएं, ब्यूरोक्रेसी, सभी अन्य बाधाएं अभी आप आपकी वैयक्तिक बाधाएं डाल सकते हैं।
अब हम अन्नपूर्णा साक्षात मंत्र लेंगे। त्वमेव साक्षात् श्री अन्नपूर्णा साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। अब हम पूर्णाहुति देंगे। ओम अग्नेय स्वाहा, ओम अग्नेय स्वाहा, ओम अग्नेय स्वाहा, ओम तत्सत्, ओम तत्सत्, ओम तत्सत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांतिः, ओम शांतिः, ओम शांतिः। आरती के लिए हम सभी खड़े हो जाएंगे।
विश्वाची जननी निर्गुण हे रूप तुझे झाली सगुण तू आता आरती निर्मल माता शिव विष्णू तुझे ध्यानी ऋषी मुनी ते भजनी लाविले सवेड सर्वा दर्शन दिले सहस्रा आरती निर्मल माता चरणी ठेविला मी माथा आरती निर्मल माता भैरवादी हनुमंत येशु गणेश हे नाथ भोवताली तुझ्या माते रंगले हे गुणगाता आरती निर्मल माता चरणी ठेविला मी माथा आरती निर्मल माता सरस्वती काली माते महालक्ष्मी विद्याते त्रिगुण हे एक झाले रूप निर्मल हेता आरती निर्मल माता चरणी ठेविला मी माथा आरती निर्मल माता जागृत ही कुंडलिनी छेदी सहस्रा योगिनी आनंद हा स्वरूपाचा कृपा तुझी माते होता आरती निर्मल माता चरणी ठेविला मी माथा आरती निर्मल माता कारण हे अवतारा भक्त जन हे ताराया सहज हा योग झाला पार करी तू अनाथा आरती निर्मल माता चरणी ठेविला मी माथा आरती निर्मल माता ध्यानी राहो तुझे नाम चित्ती अखंडित प्रेम अनंत हे जीव पायी दूर करू नको आता आरती निर्मल माता चरणी ठेविला मी माथा आरती निर्मल माता चरणी ठेविला मी माथा आरती निर्मल माता.
रुद्र शक्ती साक्षात श्री आदिशक्ती माताजी श्री निर्मला देवी की जय। कुछ समय हम ध्यान में रहेंगे। जय श्री माता जी।
जय श्री माता जी। इसके बाद हम एक 10 मिनट का ब्रेक लेंगे। आप सबसे विनंती है कि आप चाय पी के 10 मिनट में वापस आ जाए। 10-15 मिनट में आदरणीय कल्पना दीदी यहाँ पे आने वाली है, तो उनके आने के बाद में हम आगे का प्रोग्राम इमीडिएट चालू करेंगे। चाय की व्यवस्था हॉल के दोनों साइड में की है। लेडीज़ उनके राइट साइड में जा सकती है और जेंट्स लेफ्ट साइड में जा सकते हैं। हॉल के दोनों साइड में आप चाय पी के जल्दी ही वापस आ जाए ताकि हम प्रोग्राम आगे सुरू कर सकें। जय श्री माता जी। सर्वांना विनंती आहे की आपण चाय हा घेऊन लवकर यायचं आहे। एक 10 मिनिटात आपल्याला परत प्रोग्राम करायचा आहे। जय श्री माता जी।